A very good afternoon to you all, and welcome to all my dear DSY students. Regular students know me because I have taught them SBLC 1. This is SBLC 2. In the last class, last Thursday, the regular students had a small orientation about what are the contents of this particular, we can say, skill-based lab course 2. Basically, you just see diploma students. Diploma students may have had some hands-on experience on total station. बराबर? Diploma students are there? Yes, sir. Total station use किया आप लोगों ने डिप्लोमा में? Yes, sir. Yes, sir. क्या क्या किया उस पे? What works you have done on it? Yes, anyone can say, ना? Anyone can just tell. What exactly you did? डिस्टेंस फाइंड किए, लेंथ फाइंड किए, क्या किए, एरिया फाइंड किए, हाइट फाइंड किए, क्या किए? सर एंगल्स फाइंड किए, वर्टिकल एंगल्स फाइंड किए, डिस्टेंस फाइंड किए। एरिया का प्रैक्टिकल्स नहीं किए, एरिया वगैरह नहीं सर, एरिया नहीं। एरिया कंप्यूट नहीं किए, ऑफसेट्स भी नहीं मारे ना, कुछ नहीं किए। ठीक है, नो इशू। सो दिस कोर्स इज कंप्लीटली डिजाइंड टू मेक यू टोटली इंडस्ट्री रेडी, है ना? तो ये स्किल बेस्ड कोर्स है। ऑफ कोर्स skill based course, in every semester you have a skill based course, especially in third, fourth, fifth and sixth, 4 सेमेस्टर में आपको skill based course है। एंड लास्ट सेम, और आप लोग अभी थर्ड से डीएसए वाले अभी पढ़ेंगे, यू विल हैव अनदर स्किल बेस्ड कोर्स दैट इज ऑन बिम एंड जीआईएस, है ना? बिम एंड ऑटोकैड पे आपको एक स्किल बेस्ड कोर्स है। दिस कोर्स इज ऑन टोटल स्टेशन, जीपीएस एंड जीआईएस। So primarily we will be focusing more on total station in the initial stages of this particular course. Fine. So total station, my voice is clear to all? Yes, sir. Yes, sir. Total station actually is an instrument. It is a modern surveying instrument which has replaced all conventional instruments, है ना? सारे conventional instruments को इसने replace किया है। तो बेसिकली आप सर्वे में जो पढ़ रहे हो, अभी आपको एक कोर कोर्स है, सर्वेइंग का कोर कोर्स है आपको। तो उसमें क्या है, बेसिकली इन द कोर कोर्स ऑफ सर्वेइंग यू हैव द कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट्स एज वेल एज मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स। पहले सर्वे 1 सर्वे 2 अलग होता था। सर्वे 1 में देयर यूज्ड टू बी व्हाट, conventional instruments. Survey 2 में there used to be modern instruments. But in the new syllabus, you are the first batch who is learning what you are learning. You are learning both instruments, conventional as well as modern surveying instruments, in one semester. ठीक है? And also you have skill based lab course plus surveying के practicals है, right? So today is more of orientation type का आज lecture होगा. So we'll just discuss some key things. So I'll just start with the presentation. Okay. So syllabus contents I'll not go into detail because again 1 घंटा ही है मेरे पास, इसमें अगर ज़्यादा time will utilize it. So already you can go to syllabus, you can see I'm telling you what is the main crux of syllabus. 3 चीज़ों में syllabus divided है। Total station में है, तो you have 3 or 4 practicals on total station, 2 practicals on GPS and 3 or 4 practicals on GIS. तो ये 10 total practicals की list है, ठीक है? So basically see, if at any point you feel like asking some questions, देखो this is not a lecture, I'll make it very clear, this is not a lecture, ठीक है? This is a practical course और इसका practical होता है फील्ड में। तो आप लोग इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक कॉलेज में आओगे, अभी 1-2 वीक तो चलेगा, ये वीक और अगला वीक तो मुझे आई विल टीच यू थ्रू दिस ओनली, बट दिस पर्टिकुलर कोर्स इज प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, ठीक है? ये थ्योरी हम इसलिए बता रहे हैं सो दैट यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड विथ व्हाट यू नीड टू डू। फाइन। सो हाँ, तो दिस इज अ फ्री, यू कैन से एन ओपन फोरम फॉर यू टू डिस्कस। ये पिक्चर में क्या दिख रहा है आपको? सर्वे कर रहे हैं।
सर्वे कर रहा है। इतना अच्छा सो ब्यूटीफुल पिक्चर आई हैव प्रेजेंटेड टू यू एंड यू आर जस्ट जनरलाइजिंग इट इन वन स्टेटमेंट। What inference can you draw? है ना, they do, this is the survey party, है ना, these two people which are there in this pic, what they are doing, they are primarily surveying something, है ना। inference draw करो, you should be good observer। survey का पहला principle है, your observation should be strong। ऑब्जर्व करो क्या सर है, उसकी समझो लाइफ उसको, मुझे बताइए। वो वहाँ पे खड़ा है, सर अनसेफ तरीके से हाँ सर्वे हो रहा है। लेवलिंग स्टाफ जो लेके खड़ा है उसकी लाइफ वो मतलब वो फिसलने के ऐसे जगह पे खड़ा है सर, हाँ ऑलमोस्ट सर। तो मतलब एग्जैक्टली सेफ नहीं है सर। वो पिक्चर हाँ ऐसा बताना सर चाहता है सर कि वो सर्वे कुछ भी हो जाना चाहिए पर सर्वे अच्छे से हो जाना चाहिए, अपने को कुछ भी होगा चलेगा। Yeah, this is one thing, but one inference which okay, I'll just summarize what all you have said in 3-4 है ना, 3-4 तरीकों से हमने बोला। I'll just summarize it. Survey, for survey you have to visit some places which are quite unfamiliar or you can say undesirable, जहाँ आप नहीं जा सकते, है ना। They are unreachable, they are कन्वेंशनल मेथड में लोग करते थे, ऐसा सर्वे भी करते थे। अभी पुराने ऐसा नहीं है कि पुराने टाइम पे माउंटेन्स के थ्रू रोड्स नहीं बनते थे ना। इवन इफ यू सी ना इन माउंटेनस रीजन, इफ यू गो इन दिस वेस्टर्न महाराष्ट्र और ये घाट्स में चले जाओ, लोगों ने पहले भी सर्वे किया है ना। बट द रीच विच द कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू हैव, अभी देखो ये पर्सन अगर ये जाके खड़ा है ना, तो ही हैज टू, अगर उसको मार्क करना है कितना लेंथ है, कितना अवेलेबल है। सपोज देयर इज अ माउंटेन ऑन दिस साइड, है ना, there is a mountain on this side, so he needs to उसको बराबर precise calculation, and again one thing is he has to work in unsafe conditions, fine। second thing is what, he has to go to some terrains which he cannot go in normal course of time। in that case there is no option but to resort to modern instruments जो आपको आपकी जगह से ही ये बताए। और क्या है, चलो one observation you have done, what else, इतनी सारी चीजें हैं। As civil engineers, you should be keen observers। क्या दिख रहा है और क्या समझ रहा है? सर लैंड सर्वे है लेकिन ये लोग वो उधर पहाड़ पे कर रहे हैं सर। हाँ तो पहाड़ पे भी करना पड़ता है ना सर्वे। सर वहाँ पे डेंजरस का साइन मेंशन है बट दे स्टिल डूइंग सर्वेइंग। गुड ऑब्जर्वेशन, वेरी नाइस। वन मोर थिंग, आप देख रहे हो ना वो कैसे कम्युनिकेट कर रहा है। सर वो जो एक्शन दिखा रहा है उससे मतलब कि वो बंदे को पीछे जाना पड़ेगा और पीछे कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ हाँ, उसकी लाइफ डेंजर में रहेगी सर अगर कुछ भी अगर पीछे हुआ तो। एग्जैक्टली। सो ये तो ठीक है, अभी रिप्रेजेंटेशन पर्पस के लिए इट इज वेरी, मतलब दे आर वेरी क्लोज, बट फॉर सर्वेइंग ना, व्हाट आई वांट टू शो यू हियर इज, सर्वेइंग जब आप करते हो ना, यू शुड बी वेरी वेल वर्स्ड विद साइन लैंग्वेजेस। ठीक है, भले उसको अगर आगे बुला रहा हो, लेकिन अगर उसके इशारों में ऐसा कुछ उसको दिखा के पीछे से ना, तो देयर इज अगेन, देयर विल बी, क्या होगा वहां पे, देयर विल बी अ डिजास्टर। बात समझ रहे हो? तो आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो सर्वे में इफ यू आर यूजिंग सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट्स, तो आपको अगर यू नीड टू अंडरस्टैंड दी साइन लैंग्वेज, है ना, राइट में जाना, लेफ्ट में जाना, उसको जो सामने वाला है उसको समझाना है आपको। व्हाट एल्स कैन यू ऑब्जर्व? अरे बोलो। कुछ नहीं समझ रहा इसमें और? सर कीन ऑब्जर्वेशन एकदम सर इसमें से देख के एकदम। Am I audible or my net has gone? Yes sir, you are audible sir. Hello. I'm audible, हाँ। ऑडिबल है You are सर। audible. बोलो सर वो कीन बोलो, ऑब्जर्वेशन, बोलो। सर कीन ऑब्जर्वेशन सर एकदम उसमें सर वो सर्विंग की मशीन में से देख के एकदम कीन ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं सर। कीन ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है ना। ओके गुड। व्हाट अबाउट द अटायर ऑफ द पर्सन्स वर देयर? उन्होंने जो क्लोथिंग किया, जो चप्पल पहना, बूट पहना, देखो इफ यू सी
what type of shoes they are wearing? They are wearing what type of they are not wearing chappals ना, they are wearing shoes. बात समझ रहे हो? Why we have to wear shoes? Because whenever you go for surveying, there is a high likelihood that you may encounter some difficult terrains ना, difficult terrains है जहाँ पे हो सकता है not only सिर्फ इससे खतरा नहीं है, but है ना, अगर कंस्ट्रक्शन साइट है या कहीं ऐसी जगह पे जहाँ आपके किले विले भी लग सकते हैं, या तो ऐसा भी हो सकता है कोई सांप वाप वहां आ जाए, ऐसे भी जगह पे आपको सर्वे करना पड़ता है, देयर मे बी स्नेक्स एंड ऑल ना, सो इट इज अ हाई रिस्क जोन एंड यू नीड टू बी वेरी केयरफुल. अच्छा, ये पर्सन ने हैट वैट नहीं पहना है, दिस पर्सन हैज नॉट वोन एनी हैट, बट इफ यू सी दिस पर्सन इज वेयरिंग सम हैट एंड ऑल, है ना, सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल. आपके आसपास में कौन है उनसे भी आपको थोड़ा सा ये करना है, बिकॉज जनरली व्हेन द सर्वे इज डन, है ना, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज इफ यू आर डूइंग इन सर्वे इन अ रिमोट प्लेस, है ना, दैट लोकल पीपल में आल्सो हैव ऑब्जेक्शन. ये सारी चीजें से आपको you should be aware of, and you should be aware of what are the various guidelines and all for surveying. ठीक है, we'll move on. अब बताओ मुझे, ये सब तो आपने पढ़े होंगे ना? Sir, when DSY student is trying to join the class. Okay, but he would be able. I have just allowed all, na? Okay, fine. ये सब तो आपने अपने बचपन में पढ़े होंगे, सब बचपन में इन द सेंस आपके डिप्लोमा में. Those who have done diploma may have studied there in their diploma. Else, those who have not done diploma also may have studied something about chain, ranging rod, steel tape, है ना, ये सब पता है? Yes sir. क्या है ये सारी चीज? Sir, surveying instruments sir. These are basic surveying instruments. Fine. अच्छा, 3 प्रोसेसेस है, ठीक है. अभी ये 2 पॉइंट्स के बीच में when will what purpose will chain do, अगर ये 2 समझो पॉइंट्स है, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2. आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर. हाँ, ओके. सपोज दीज आर 2 पॉइंट्स, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर, ठीक है. सर आवाज ब्रेक हो रही बार-बार. What do we under? Just a moment, I'll just check my internet. सर, एक DSY स्टूडेंट है, देखो उसको ऐड करो, वो ज्वाइन होने की कोशिश कर रहा है. उसको नहीं, उनको थोड़ा नेक्स्ट टाइम से प्लीज यू ट्राई टू ज्वाइन ऑन टाइम, बिकॉज बार बार है ना लेक्चर में डिस्टरबेंस होता है. फाइन, I have allowed all, so there should not be any problem. So what I am asking you is a very simple. Am I audible now clearly? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. These are 2 points, है ना. चेन यूज करके क्या कर सकते हैं? सर, ये दोनों पॉइंट के बीच क्या कर में सकते हैं? जो भी लेंथ है उसको मेजर कर सकते हैं, जो भी डिस्टेंस है दोनों के बीच में का. हाँ, एग्जैक्टली. सो चेन क्या है? देखो, आपको वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता है और अक्सर लोग इसमें गलती करते हैं इसमें. हाँ, सो मेजर द लेंथ मीन्स चेनिंग, है ना. डिग्री रेगुलर स्टूडेंट्स, ओके, यू शुड आल्सो आंसर. डिप्लोमा स्टूडेंट्स आर आंसरिंग, यू शुड आल्सो आंसर. डिग्री स्टूडेंट्स ध्यान रखो. तो सर आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है. ये 2 पॉइंट्स के बीच का फासला निकालना, इन शॉर्ट अगर मुझे लेमैन्स लैंग्वेज में बताना हो, टू कंप्यूट द डिस्टेंस और मेजर द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स. एम आई ऑडिबल? Yes sir. हेलो, आवाज आ रही है मेरी क्लियरली? Yes sir. हाँ, मुझे ये 2 पॉइंट्स के बीच का अगर डिफरेंस निकालना है, डिस्टेंस हाँ, and that can be done using a chain or it can be done using a tape. बात समझ रहे हो? Are you understanding? तो चेन से क्या होगा? चेन कैन बी यूज फॉर कंप्यूटिंग द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. ठीक है, ये समझा? रेंजिंग रॉड का क्या यूज होगा? बोलो.
पॉइंट मार्क करने के लिए सर। रेंजिंग रॉड क्यों यूज? मार्किंग द पॉइंट। रेंजिंग रॉड, यूज रेंजिंग रॉड्स? सर अब आपकी आवाज बहुत अटक रही है। करने के लिए सर। आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है सर। हेलो। Am I audible? यस सर, पर आपकी आवाज सर बहुत आपकी अटक रही आवाज है बहुत सर। अटक रही है सर। ग्लिच Hello. हो रहा है सर, आपकी आवाज बहुत ग्लिच हो रही है। I'm not able to hear you. सर आप हम लोग की आवाज नहीं सुन पा रहे। सर आपका मोबाइल का ये चालू है क्या जुनैद सर? हाँ ये चल नेट। हाँ जस्ट अ मोमेंट, आई कनेक्ट विथ क्या सर पासवर्ड? जस्ट अ मोमेंट, इंटरनेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आई विल कनेक्ट विथ पर्सनल नेट बिकॉज आई एम नॉट एबल टू हियर व्हाट यू आर सेइंग। नहीं सर, हाँ आएगा, आ गया सर। आपका भी नेट स्लो है सर। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। Yes, I have connected to my personal net. कॉलेज का नेट there is some problem I guess. So personal net से कनेक्ट किया है। अभी I believe the voice will not be so fluctuating. Fine. यस सर। आ रहा अभी आवाज आ रही है नहीं? हाँ if any break of voice is there, हाँ immediately let me know because क्या है मेरे साइड से it is very clear but I am not, है ना, आपको क्या सुनाई दे रहा है मुझे इधर से नहीं पता चलता। Immediately you let me know. So what we were discussing about chain ना, chain से क्या करेंगे हम? रेंजिंग रॉड मार्किंग द पोजीशन स्टेशन। हाँ स्टेशन के Ranging rod से पोजीशन को क्या मार्क करेंगे? करके सर। क्या होगा? We can use wooden pegs also ना for marking. सर एक लाइन में अलाइन करने के लिए सर। अच्छा एक लाइन में अलाइन करने के लिए, गुड। टू ब्रिंग समथिंग इन रेंज है ना, इन शॉर्ट, बराबर। टू ब्रिंग समथिंग इन, टू ब्रिंग समथिंग इन रेंज है ना। ये दो पॉइंट्स है। अगर मुझे है ना, if I want to bring this, suppose these are 2 points, rod 1 and rod 2. If I want to bring this rod 3 and rod 4 इसके बीच में लाना है, तो what I'll do, I'll use the ranging rods. बीच में लाना है, even beyond लाना है। अगर ये 2 points इसके beyond भी लाना है, तो what will do, one person will be standing on either on this side and he will be observing. उसको क्या दिखना चाहिए? This should be looking as one single point है ना, this should be looking to him as one single point. वो point अगर उसको दिख रहा है, वो पॉइंट अगर उसको दिख रहा है तो क्या होगा? वो पॉइंट अगर दिख रहा है तो उससे he will be able to what? He will be able to है ना, उसको अगर वो पॉइंट दिख रहा है, अगर वो लाइन में दिख रहा है तो इधर से पॉइंट दिखेगा, ये बड़ा दिखेगा, ये पॉइंट छोटा हो जाएगा, तो his vision will be, है ना, तो he should be able to guess which point is there. तो रेंजिंग में क्या होगा? रेंजिंग में to bring in line any 2 points है ना, any 2 points की लाइन में तीसरा पॉइंट लाना, that is known as ranging. It has nothing to do with measuring. याद रखो, बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं एग्जाम में या वाइवा में, रेंजिंग रॉड इज यूज्ड फॉर मेजरिंग डिस्टेंस। नहीं, रेंजिंग रॉड किस लिए यूज होता है? रेंजिंग रॉड इज यूज्ड फॉर प्राइमरीली मार्किंग, लोकेटिंग अ न्यू, हाँ मार्किंग और लोकेटिंग बोलो, लोकेटिंग अ न्यू पॉइंट इन बिटवीन 2 पॉइंट्स, हाँ प्रोलॉन्गिंग अ लाइन, isn't it? Fine? यस सर। थर्ड, क्रॉस स्टाफ। क्रॉस स्टाफ क्या होता है? एंगल मेजर करता है परपेंडिकुलर ऑफसेट के लिए सर। मेजरमेंट एंगल एंड एल्टीट्यूड। हाँ एक्चुअली इट इज नॉट यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजर एंगल कब कम करते हैं? सुनो समझो इसको, मेजर हम एंगल कब करते हैं? जब हमारे पास एक ऑलरेडी लाइन, 2 लाइन दी होती है, उसके बीच का हम एंगल मेजर करते हैं। क्रॉस स्टाफ इज यूज्ड फॉर सेटिंग अ पॉइंट इन दैट एंगल। एक प्री डिफाइंड एंगल होता है, समझ रहे हो? यस सर। समझो इस बात को, प्री डिफाइंड एंगल पे एक पॉइंट को सेट करना है, क्रॉस स्टाफ यूज। हम एंगल मेजर नहीं करते, सब बात को समझो, इसको फर्क समझो। मेजरिंग मतलब क्या? 2 लाइन है, 2 लाइन के बीच का एंगल निकालना है ना,
ऑलवेज लाइन के बीच में एंगल होगा, ठीक है, पॉइंट्स के बीच में एंगल नहीं होते, लाइन के बीच में दो एंगल निकल एंड दैट इज नोन एज मेजरमेंट ऑफ एंगल। whereas cross staff क्यों यूज होगा? cross staff will be used for setting a point to a predefined angle. Now this predefined angle may be a perpendicular offset of 90 degree or it may be an oblique offset. ये सारे टाइप के ऑफसेट्स होते हैं। तो परपेंडिकुलर ऑफसेट का टाइप है जहाँ एक चेन लाइन से 90 डिग्री पे ऑफसेट मारा है, ठीक है। अगर हमको एंगल, ये पहले से ही लाइन, अगर एंगल मेजर करना तो वी नीड टू यूज अ कंपास और अ थियोडोलाइट। बात समझ रहे हो? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? यस सर। यस एक सर। बार वापस बताओ ना सर ये। हाँ फिर से बता, देखो ये स्टील टेप, ये क्रॉस स्टाफ है। क्रॉस स्टाफ क्या होगा ना, वी विल कीप अ क्रॉस स्टाफ एट दिस पॉइंट। ये चेन लाइन है, हमको अगर एक पॉइंट लोकेट करना है, एक पॉइंट लोकेट करना है 90 डिग्री, तो वी विल बी यूजिंग अ क्रॉस स्टाफ, ठीक है। ये एंगल प्री डिफाइंड होगा, 90 डिग्री या 60 डिग्री या 30 डिग्री। क्रॉस स्टाफ के डिफरेंट टाइप्स है ना, आई जस्ट शो यू सम क्रॉस स्टाफ हियर आल्सो। तो ना क्रॉस स्टाफ में क्या होगा, क्रॉस स्टाफ में एंगल्स विल बी लोकेटेड इन प्री डिफाइंड पॉइंट्स, है ना। ये देखो, क्रॉस स्टाफ इज सिमिलर टू दिस, है ना। क्रॉस स्टाफ में क्या होगा, क्रॉस स्टाफ में यू विल गेट एंगल, यहाँ पे आप क्रॉस स्टाफ लोकेट करके यू कैन लोकेट द एंगल्स, है ना। प्री डिफाइंड एंगल्स होंगे, तो देयर इज एन ओपन क्रॉस स्टाफ, देयर इज अ फ्रेंच क्रॉस स्टाफ, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉस स्टाफ, है ना। And different other instruments also which can be used, optical instruments which can be used for locating predefined angles. Fine. Next thing is compass. Compass will be used for measuring angles. जैसे एंगल है, एक लाइन पहले से लाइन डिफाइंड है आपके पास, वो दो लाइन के बीच का एंगल आपको निकालना है। दिस इज वन लाइन, दिस इज वन लाइन, दो भी एंगल्स के बीच में एंगल्स निकालना है, तो कंपास कैन बी यूज्ड, थियोडोलाइट कैन बी यूज्ड, and there are other processes also. So in surveying, sir will discuss you in detail. Right? Then once you finish with conventional instruments, there are modern instruments. ठीक है, तो in modern instruments we have electronic theodolite, electronic distance measuring instruments, auto level है, digital level है, laser level है, laser distance meter है, total station है। जो आपके स्किल में, हमारा फोकस इस पे रहेगा, टोटल स्टेशन पे रहेगा, जीपीएस पे रहेगा एंड जीआईएस पे रहेगा। ये लास्ट सेकंड लास्ट, क्या बोल रहे हो? डंपी लेवल, डंपी लेवल विल नॉट बी यूजिंग, आपको प्रैक्टिकली नहीं है डंपी लेवल पे, वो सब चीजें ना अभी आउटडेटेड हो गई है आजकल। टोटल स्टेशन सर्वे आ गया ना सर। हाँ, you will be having in surveying also, there are, I think there is one or two, one practical only, so I guess that will be also covered with auto level only. Yes. सर्वे में आपके पास टोटल 10 प्रैक्टिकल्स है, उसमें लेवलिंग का एक ही प्रैक्टिकल है एंड आई बिलीव इट विल बी कंडक्टेड थ्रू ऑटो लेवल, बट स्टिल इट इज योर फैकल्टी जो है उनका चॉइस है। इफ दे वांट टू कंडक्ट विद डंपी लेवल दे कैन कंडक्ट विद डंपी लेवल, और प्राइमरीली ऑटो लेवल इज गुड। सो समझ रहे हो? तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स है, जीपीएस भी है, तो जीपीएस का भी हमारे पास वी विल कंडक्ट द प्रैक्टिकल्स इन स्किल बेस्ड लैब कोर्स। देखो ये जो कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट्स है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स आप सर्वेइंग में पढ़ोगे, और ये जो ऊपर वाले इंस्ट्रूमेंट्स है ये सारे इंस्ट्रूमेंट आप सर्वेइंग में पढ़ोगे। टोटल स्टेशन का भी एक पार्ट सर्वेइंग में है, थ्योरेटिकल पार्ट है, बट प्रैक्टिस आपको करना है और स्किल बेस्ड में आपको इसमें करना है, स्किल बेस्ड लैब कोर्स में करना है। डिफरेंस क्या है? देखो सिंपल, आप लॉजिकली सोचो इसके बारे में। कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट है, चेन टेप लेना, 500 रुपए 1000 रुपए में मेरा पूरा असेंबली आ जाएगी, है ना। सो दे आर वेरी लो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट में अगर मुझे टोटल स्टेशन खरीदना है आज के दौर में 4.5-5 लाख, आई शुड हैव टू हैव अ बेसिक वर्जन ऑफ टोटल स्टेशन, नॉट वेरी बेसिक एंड नॉट वेरी एडवांस। वेरी एडवांस अगर मुझे लेना है, रोबोटिक टोटल स्टेशन 20-25 लाख में आता है वो, तो समझो इसको, ये कितने में आया? 1000 रुपए के अंदर आपका पूरा असेंबली चेन टेप का आ गया, है ना। 1 सेट ऑफ चेन, 1 सेट ऑफ टेप। यहाँ पे क्या है, यू नीड टू हैव हेवी अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट। छोटा मोटा सर्वे करना है ना, रूरल एरिया में कोई सर्वे करना है, सो यू शुड गो फॉर कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट्स। मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स अगर आपको फास्ट रैपिड सर्वे करना है, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, है ना, वहाँ जहाँ स्पीड एंड एक्यूरेसी इज द क्रक्स ऑफ टाइम, उस टाइम पे यू शुड गो फॉर मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स। tedious and time consuming conventional instruments, of course you have to do a lot of hard work. This is easy and speedy. Modern instruments laborious job है ना, hard work है,
आपको बहुत सारा लेबर लगेगा, 2 जन लगेंगे ब्रिंजिंग रॉड ये करने के लिए, फिर चेन टेप पूरी असेंबली रहती है। तो सर्वे में जो आप पहला प्रैक्टिकल करोगे तो इट विल बी क्लियर हाउ लेबोरियस इट इज। मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स आर स्मार्ट, है ना, एक जगह पे एक इंस्ट्रूमेंट पे 2 जन की पार्टी पूरा का पूरा सर्वे कर सकते, 2 लोग, है ना, यूजिंग अ टोटल स्टेशन एंड द प्रिज्म, एंटायर सर्वे कैन बी, इवन one person job can also be done using the total station if the area is small। एरर के चांसेस बहुत है और होते भी हैं। Yes, precise and accurate. How accurate it is? In total station, it is said that if you do properly in 3 kilometers using a prism mode, there will be an error of only 3 or 4 mm। बात समझ रहे हो? 3 किलोमीटर में 3 से 4 mm का एरर रहता है टोटल स्टेशन में। Are you understanding? Are you imagining कितना होगा 3 किलोमीटर का? आप इमेजिन कर सकते हो कितना है? ठीक है, जनरली अगर आप देखो 3 किलोमीटर to define how much 3 kilometers will be, आपके कॉलेज से खंडेश्वर स्टेशन है ना, जाके आने में 3 किलोमीटर हो जाएगा, 1.5 किलोमीटर्स है। सो फॉर गोइंग एंड फॉर कमिंग बैक इट विल बी 3 किलोमीटर्स। तो उतना डिस्टेंस है ना, अगर वन स्ट्रेच इन वन लीनियर स्ट्रेच एक लाइन में अगर उतना डिस्टेंस हो तो उसमें कितना एरर है? 3 से 4 mm का एरर है। mm यू कैन इमेजिन, है ना। यू हैव यूज्ड स्केल, है ना, रोलर स्केल आपने यूज किए होंगे, है ना, फ्रॉम योर चाइल्डहुड डेज। उसमें जो 1 सेंटीमीटर पर mm का होता है 3 से 4 mm, तो उतना एक्यूरेट टोटल स्टेशन रहता है प्रोवाइडेड। हाँ, ये दिस इज द इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेसी। आप गलती करोगे तो इट विल बी, है ना, एडेड टू इट, बट इंस्ट्रूमेंट का इतना एरर फ्री हो रहता है। whereas ये इंस्ट्रूमेंट में ही, है ना, इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ इज फॉल्टी इन द सेंस थोड़ा बहुत उसमें एरर आएगा ही आएगा। नो मैटर हाउ प्रिसाइजली हाउ एक्यूरेटली यू ट्राई, कुछ ना कुछ एरर आएगा। No count is free from no error, no we can say measurement is free from error except count। काउंटिंग करना तो एरर नहीं होगा, बाकी सारा मेजरमेंट जो आप करते हो, ये ना आपको टेबल का भी अगर डिस्टेंस मापना है ना, या टेबल का चेयर का डिस्टेंस अगर लेना है, उसमें भी अगर आप प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे तो भी आपका कुछ ना कुछ mm में एरर रहता है, रहेगा ही, नैनो mm में कुछ ना कुछ एरर रहेगा ही। तो एरर्स विल बी देयर, बट इसमें कम होता है, मॉडर्न में इसमें ज्यादा होता है। If you have any doubt, please ask। ऐसे एकदम साइलेंटली सुनो मत, because I feel that मेरा आवाज आ रहा है नहीं, ऐसा मुझे ये होता है। Yes, sir, आ रहा है, समझ रहे हैं सर। हाँ, any doubt you have or anything you want to add also, आपको कुछ ऐड करना है इसमें, तो you are most welcome to add some points, है ना। Limitation with respect to reach and least count, है ना, कितना सर्वे कर सकते हो, है ना, एक दिन में आप मैक्सिमम कितनी भी मेहनत, कितना भी you can say how much effort, how many effort, or how, no matter how much efforts you put, you can have एक थोड़ा सा ही सर्वे कर पाओगे आप यूजिंग कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट्स। whereas इसमें लिमिटेशंस कम है। टोटल स्टेशन में अगर ऑब्स्ट्रक्शंस है या बारिश है या व्हीकल्स बहुत सारे जा रहे हैं बीच में, बहुत सारे अदर रीजंस है, तो लिमिटेशन उसमें भी ऐसा नहीं है कि वो डेट इज लिमिटेशन फ्री, नहीं, लिमिटेशन टोटल स्टेशन में भी है बट कम है एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल मेथड्स। मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स जो भी है, जीपीएस, जीआईएस, दूसरे भी इंस्ट्रूमेंट्स है, ऑटो लेवल, इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स एंड ऑल, इसमें लिमिटेशंस कम आते हैं। ईडीटी लिमिटेशंस आर देयर बट दे आर लेस। लॉट्स ऑफ कैलकुलेशन इन्वॉल्व, है ना। इसमें क्या है, कैलकुलेशन सारा कौन कर लेता है? माइक्रो प्रोसेसर से। आपने एक स्लोपिंग डिस्टेंस निकाल लिया, एंगल वो खुद निकाल लेगा, फिर वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस वगैरह आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, कॉस थीटा, साइन थीटा जो भी है वो लगा के आपको डायरेक्ट रेडीमेड आंसर दे देगा। फाइन। डेटा इज इन हार्ड फॉर्म, कैन बी मिस्ड, मैनिपुलेटेड, है ना। आप अभी उसमें दोज हु हैव डन सर्वेइंग, है ना, एक्सपीरियंस डिप्लोमा स्टूडेंट, आप फील्ड बुक में सारा डेटा लिखते हो, तो उसमें कैसा होता है, आप रफली लिखते हो या कभी लिखते हो, फिर कभी गलत लिखता है, सामने वाले ने 8.6 बोला, आपने 6.8 लिख दिए, होता है ऐसे। तो उससे क्या होता है, डेटा कैन बी मैनिपुलेटेड, स्पेशली इन सर्वे प्रोजेक्ट्स एंड ऑल यू हैव डन डिप्लोमा स्टूडेंट्स। आपको मालूम है कितना पूरा दिन भर की मेहनत करने के बाद वो भी जो फाइनल चेक आना चाहिए होता नहीं है, वो क्यों होता है, 1-2 गलती की वजह से वो पूरा दिन का आपकी मेहनत वेस्ट हो जाती है। वेस्ट नहीं होती है बट इट डजंट गिव यू द प्रॉपर सेटिस्फेक्शन कि मैंने इतनी मेहनत से पूरे दिन हमने लगाए, लेकिन स्टिल वी आर नॉट गेटिंग द चेक व्हिच शुड बी देयर। सो मे बी सम माइनर एरर्स होंगे या कुछ तो माइनर चीज होगी जिसके से नहीं, लेकिन वो पूरा आपको यू आर नॉट एबल टू ट्रैक। whereas in modern instrument everything is in soft, you can check, recheck, वो पॉइंट जाके कर सकते हो, सब रहता है। अगेन यू कैन रीसेक्शन से वो इंस्ट्रूमेंट पे फिर से इंस्ट्रूमेंट पोजीशन पे जा सकते हो, सारी चीज उसमें अवेलेबल है। सो इवन दो यू डू सम एरर्स यू कैन गो एंड रेक्टिफाई। सो उसका एडवांटेज है
only one you can say disadvantage, major disadvantage is what? Major upfront investment. आपको इनिशियली इन्वेस्टमेंट करना होता है. एज आई सेड, जितनी ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करो. बेसिक मॉडल चाहिए 3-4 लाख में आपको टोटल स्टेशन का मॉडल मिल जाएगा. लेकिन आप बोलोगे नहीं मुझे एडवांस चाहिए, फिर ये भी चाहिए, रोबोटिक भी चाहिए, स्कैन स्टेशन भी चाहिए, जीपीएस भी चाहिए उसमें टोटल स्टेशन में इनबिल्ट. सो इट बिकम्स अ बिट, है ना, वो थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है. अगेन जो बड़ी कंपनीज है, सर्विंग कंपनीज में, उनके पास करोड्स एंड करोड्स के प्रोजेक्ट्स देते हैं फॉर सर्विंग. सो दे डोंट माइंड इन्वेस्टिंग 20-25 lakhs. उनका वन टाइम इन्वेस्टमेंट है. एक इंस्ट्रूमेंट उन्होंने 4-5 महीने भी यूज किया तो इंस्ट्रूमेंट का पूरा खर्चा उनका आ जाता है. मोर देन दैट दे डिड. सो ये सारी चीज है. विच इज बेटर, बोलो. मॉडर्न. हाँ, मॉडर्न इक्विपमेंट सर बेटर. हाँ, मॉडर्न इक्विपमेंट्स बेटर है हर चीज में. हर चीज में नहीं सर. अगर एक कॉस्ट को अगर देखेंगे तो फिर कॉस्ट खाली एक पॉइंट छोड़ के बाकी सारे इसमें बेटर है. ठीक है, आई गिव यू स्पेसिफिक केसेस. फाइन. डिस्टेंस मेजर करना है मुझे, है ना. यस प्लेन सर. ग्राउंड है, प्लेन ग्राउंड है, हाँ. है ना, ज्यादा अंडुलेशंस नहीं है, सीधा ग्राउंड है, ओपन प्लॉट है, जो मोर और लेस जैसे अपना कॉलेज का अपना कैसा ग्राउंड है. अभी डीएस में स्टूडेंट्स में नॉट हैव सीन, बट एटलीस्ट कॉलेज का ग्राउंड कैसा है, या आपके इवन प्लेन ग्राउंड है कोई, वहां पे अगर मुझे डिस्टेंस मेजर करना है कौन सा प्रेफरेबल होगा? कन्वेंशनल सर. सर चेन टेप यूज कर सकते हैं. यूज सकते हो कन्वेंशनल सर. बिकॉज कॉस्ट इन्वॉल्व इज लेस. सो अगर आप इस प्रोफेशन में हो जहाँ पे आपको ऐसे सारे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं जो मोर और लेस दे आर इन अर्बन सेटअप, और आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे सिर्फ आपको एरिया कंप्यूटेशंस और ये सारी चीज करना है. सो व्हाई विल यू परचेज द, है ना, परचेज आप क्यों करोगे? एक चीज ये हो गई. सेकेंड थिंग इज यू आर वर्किंग इन जंगल में आप वर्क कर रहे हो. कोई हाईवे प्रोजेक्ट है, जंगल में वर्क कर रहे हो, क्या प्रेफर करोगे? सर मॉडर्न. मॉडर्न. मॉडर्न सर, मॉडर्न. क्यों? टेप लगाना सर, दिखेगा नहीं ना घास वास पे. ज्यादा है सर. स्टेकर बहुत सारे होंगे. सर कन्वेंशनल अगर यूज करेंगे तो एरर के चांसेस बहुत ज्यादा है. बिल्कुल चांसेस के एरर के चांसेस है. देखो जंगल में देयर आर बुशेस, है ना, उसे कितना बड़ा है उस पे डिपेंड करेंगे. वगैरह है, और मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स यूज करना है तो आपको यू शुड हैव क्लियर लाइन ऑफ साइट. स्पेशली टोटल स्टेशन यूज करना है तो जीपीएस करोगे तो बात अलग है. तो आप यू कैन नॉट सी थ्रू ना, बात समझ रहे हो? देयर आर बुशेस, बड़ी बड़ी यू कैन से घास है, उधर घास उगी है, घास इन द सेंस दे आर बुशेस इन द ट्यून ऑफ से मोर देन योर हाइट. उस टाइम पे टोटल स्टेशन यूज करना, बिकॉज देखो आपको सब झाड़ी वाड़ी वो सब हटाना पड़ेगा उधर से. तो सर्वेयर्स का काम, सबसे पहला काम सर्वेयर्स का होता है. 2 टाइप के सर्वे होते हैं. देयर आर मेनी टाइप ऑफ सर्वे बेसिकली. एक होता है आपका इंजीनियरिंग सर्वे, सेकंड इज ये जो आपका सर्वे कर रहे हो आप कन्वेंशनल सर्वे, और जो भी सर्वे कर रहे हो. दूसरा इज यू नीड टू डू जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन. तो पहला आपको जाना पड़ेगा एज अ सर्वेयर, यू नीड टू गो एंड यू नीड टू, वो टाइम पे सारे बुशेस एंड ऑल दे विल बी इंटैक्ट. प्रोजेक्ट बाद में बनेगा ना, वहां से रोड बाद में जाएगी, लेकिन अभी जो जंगल है वो तो जंगल आपको सर्वे करके देना है कि कितना मुझे बुशेस काटना है, क्या खर्चा आएगा उसका, वो सब आपको बना के देना है, कितना कटिंग करना है, कितना फिलिंग करना है. So when you encounter such terrain, you should think over it, है ना, decision लेने. Both methods can be advantageous depending on the situation. Fine. तो चेन टेप क्या है? चेन टेप अगर मेरी झाड़ियों में अगर कट भी गई है ना, चेन तो नहीं कटेगी, लेकिन टेप समझो फट गई, कुछ हो गया तो आई कैन रिप्लेस इट. One more thing is if you are working in a very remote place, what about the batteries जो रहेगी टोटल स्टेशन की, वो तो वो नॉट हो जाएगी और वो उसका चार्ज खत्म हो जाएगा. आप समझ रहे हो? आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर. यस सर. Yes, sir. आपको बहुत सारी बैटरी साथ में कैरी करने के बाद वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का तो कुछ कनेक्शन नहीं होगा, isn't it? Yes, sir. Yes. तो यू नीड टू मेक प्रॉपर अरेंजमेंट. अगर आपके पास अरेंजमेंट्स है, आपके पास अगर चार्जिंग के आप डिवाइसेज या कुछ लेके जा रहे हो, यूपीएस वगैरह लेके जा रहे हो बहुत सारे, जहाँ पे आप बैटरीज को चार्ज कर सकते हैं, एक्स्ट्रा बैटरीज लेके जा रहे हो, सो यू कैन प्रेफर मॉडर्न. अदरवाइज यू हैव टू गो फॉर, तो ऐसा नहीं है कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट्स आर आउटडेटेड. हम भले ही स्किल बेस्ड लैब कोर्स पढ़ रहे हैं,
बट कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट्स को भी आपको सीखना है, समझना है और यूज करना है, ठीक है। व्हाई? बिकॉज उसका एक ही सबसे बेस्ट एडवांटेज है, क्या है? इट इज वेरी लो लाइट कॉस्ट। ऑन योर, आपके जेब में वो बहुत हल्का है ना, इट विल कॉस्ट यू वेरी लेस। इवन अगर आपका जंगल में कहीं घूम गया टेप और चेन, यू विल नॉट बी दैट वरीड। ज्यादा वो नहीं आएगा सर। टोटल स्टेशन कुछ हो गया तो कोई लेके गया तो भालू वालू आपके मंकी वगैरह कुछ लेके गया तो क्या करोगे? पैसा भरना पड़ेगा। फिर तो यू शुड हैव प्रॉपर प्रिकॉशंस फॉर दैट, फाइन, ठीक है। सो Yes, इट sir. इज नॉट जस्ट बेस्ड ऑन एक वेग आंसर मत दो, इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस। एंगल मेजरमेंट, एंगल मेजरमेंट के लिए क्या यूज करोगे, क्या प्रेफर करोगे? कंपास। क्यों? Theodolite। बोथ आर करेक्ट, बट सिचुएशंस बताओ मुझे। अगर सर प्लेन ग्राउंड पे एक अगर एंगल मेजर करना है तब कंपास। ओके, तो गुड। सर ये जंगल वंगल ये सब चीज रहा तो सब थियोडोलाइट जरूर। तो थियोडोलाइट में दिखेगा कैसे आपको? लाइक क्लियर लाइन ऑफ साइट चाहिए ना थियोडोलाइट में। देखो हाँ। सुनो, अब उल्टा बोल रहे हो। कंपास अगर मैंने इधर रखा है, और समझो मेरा एक पॉइंट, अभी इन कॉलेज, मैंने कॉलेज में कंपास देखा है, नॉर्थ इधर डायरेक्शन है, मैं खांडेश्वर स्टेशन पे भी जाके नॉर्थ देखूंगा तो मुझे वो नॉर्थ के रेफरेंस में बताएगा, बराबर। लेकिन इधर मैं थियोडोलाइट रख के खांडेश्वर स्टेशन नहीं देख सकता ना। आर यू Yes, sir. अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टू से? यस सर, सो यस अगर सर, यस। मेरा एरिया टू बी कवर्ड इज मोर, है ना, लाइन का लेंथ मेरा बहुत ज्यादा है उस टाइम पे, है ना, और अंडुलेट, ये सॉरी, एक रफ टेरेन है या टेरेन ऐसा है जहां पे बहुत सारे बुशेस और ये सारी चीजें, जहां पे डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट इज नॉट पॉसिबल, है ना, सी थ्रूज पॉसिबल नहीं है ना। मैं इधर से देखो, थियोडोलाइट से अगर आपको वर्क करना, यू शुड हैव समथिंग टू साइट ना। अगर आप साइट ही नहीं कर पा रहे हो सामने, तो क्या फायदा थियोडोलाइट का? आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो उस केस Yes, में sir. ये उस केस में कंपास प्रेफर करोगे, लेकिन अगेन उसमें आपको नॉर्थ से सारे रेफरेंसेस ड्रॉ करने होंगे और वो सब समझना होगा। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन भी है, दोनों करना है, तो कौन सा प्रेफर करोगे? इतना क्या सोच रहे हो यार? डिस्टेंस एंड डायरेक्शन दोनों करना है। पहला तो डिस्टेंस था, अभी डिस्टेंस के साथ एंगल में आ गया। क्या प्रेफर करोगे दोनों में से? थियोडोलाइट। Station। मॉडर्न सर, क्योंकि इसमें Total session you will prefer, yes. In this case, unless you have a budget problem, I will go with total session always. हमेशा I will go for total session. Distance and direction अगर मुझे दोनों मेजर करना है, if I don't have a budget problem, पैसों की कमी नहीं है अगर मेरे कंपनी को, तो I will always prefer total session. Why? Because it will save me a lot of time. मेरा सारा कैलकुलेशन वो करके दे देगा, प्लस इट हैज, है ना, मुझे खुद से एंगल मेजर, एरर्स नहीं रहेंगे। टोटल सेशन एंगल्स भी खुद से मेजर करेगा। आई जस्ट नीड टू प्रॉपर्ली बाइसेक्ट। once you'll start working with it, it will be more clear too. I just need to bisect and I just need to, है ना, वो सारी रीडिंग्स खुद कैलकुलेट करेगा, तो आई नीड नॉट डू एनीथिंग। मेरा सारा काम कौन कर रहा है? टोटल सेशन कर रहा है। बस मुझे कैसा प्रोसेस, इफ आई मेक द प्रोसेस क्लियर, द रिजल्ट इज बाउंड टू बी करेक्ट ओनली। इसमें क्या है, थियोडोलाइट में कभी इंस्ट्रूमेंट खराब होगी, क्या होगा, मैंने एंगल गलत लिया, फिर उसका लीस्ट काउंट देखो, है ना, स्पेशली इस डिप्लोमा स्टूडेंट विल बी नोइंग, वर्नियर थियोडोलाइट का मेन स्केल का लीस्ट काउंट होता है मिनट सेकंड में, सॉरी डिग्री मिनट्स में, वर्नियर स्केल का मिनट सेकंड में होता है। फिर दोनों को मैच करो, फिर उससे इसका निकालो, फिर इसको ऐड करो। इट इज अ वेरी कम्बरसम कम्बरसम प्रोसेस। ऐसे एक एंगल बहुत टाइम लगता है के लिए हो गया, जैसे कि आपको, हाँ, 10-15 एंगल करना है तो बहुत सारा टाइम जाएगा आपको, और वो एंगल सही है कि नहीं इसकी भी गारंटी नहीं रहती आपको। तो यू ऑलवेज प्रेफर टोटल सेशन, जहां पे भी दोनों चाहिए, ठीक है, एंड लॉट ऑफ मेजरमेंट्स कैलकुलेशंस आर नीड टू बी डन, ऑलवेज यू विल प्रेफर टोटल सेशन। लेवलिंग के लिए अगेन डंपी लेवल, ऑटो लेवल इज देयर, डिजिटल लेवल इज देयर। ऑफ कोर्स अगर आपको प्रिसाइज लेवल चाहिए तो यू विल गो फॉर डिजिटल लेवल, नहीं तो जनरली आजकल देखो, इफ यू सी, है ना, इफ यू ऑब्जर्व ऑन द साइट्स, आजकल टोटल स्टेशन और ऑटो लेवल, ये दो चीज ही आपको मैक्सिमम दिखती है। आप कोई भी रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे जाओ या कहीं पे भी जाओ, ये दो चीज से ही काम होता है आजकल, राइट। साइट प्लान वगैरह बनाना है, उसके लिए भी अगर छोटी सी एरिया है तो प्लेन टेबल यूज करो, बड़ा एरिया है, पूरी सिटी का प्लान करना है, एक सेक्टर का प्लानिंग करना है, ऑलवेज गो फॉर टोटल सेशन, जीपीएस, जीआईएस, रिमोट सेंसिंग, ये सारी चीजें।
बात समझ रहे हो? तो देर इज नॉट वन फिट फॉर ऑल सोल्यूशन। एक सर एक हर बेस्ट एक चीज बेस्ट सब में नहीं होगी, है ना? मॉडर्न विल बी बेस्ट इन मैक्सिमम केसेस, बट conventional instruments are also required depending on budget, depending on applicability. ठीक है? तो जस्ट स्मॉल बेसिक्स। तो ईडीएम जो है पहले तो है ना, ईडीएम मींस व्हाट? सिंपल कंसेप्ट है इसका, लाइट वेव्स ट्रैवल, दे स्ट्राइक द ऑब्जेक्ट एंड दे कम बैक एंड दे आर रिकॉर्डेड। बात समझ रहे हो? एक है ना, एक क्या होगा, एक एमिटर होगा, इसको समझो, सिंपल प्रोसेस है। एक एमिटर होगा जो सोर्स से रेज को एमिट करेगा, रेज जाएगी सामने, टकराएगी, वापस आएगी, ठीक है? एंड अगेन द रिसीवर विल रिसीव, एमिटर के ही साथ में एक रिसीवर रहता है, वो रिसीव करेगा, ठीक है? शर्त क्या होनी चाहिए? देयर शुड बी अ क्लियर लाइन ऑफ साइट। ऑब्स्ट्रक्शन को बीच में आ गया तो क्या होगा? द राइट रेज विल ट्रैवल, स्ट्राइक द ऑब्स्ट्रक्शन, कम बैक एंड यू विल मेजर द रॉन्ग डिस्टेंस। समझ रहे हो? डिस्टेंस डिस्टेंस का क्या ये फंडा है, फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस का? व्हाट इज डिस्टेंस? 6 स्टैंडर्ड साइंस या 7 स्टैंडर्ड साइंस में या उससे भी पहले पढ़े होंगे। डिस्टेंस क्या है? स्पीड इनटू टाइम। वेरी नाइस, स्पीड इनटू टाइम, बराबर। तो मुझे जो स्पीड इनटू, अभी देखो मेरे एमिटर से एक सिग्नल गया, टकरा के वापस आ गया और रिसीवर में कलेक्ट हो गया, तो दैट टाइम विल बी कंप्यूटेड इन नैनो सेकंड्स, है ना? उसमें अरेंजमेंट होता है, सेकंड्स की तो बात ही नहीं, नैनो सेकंड्स में टाइम काउंट होगा 10⁻⁹ उतना उसका एक्यूरेसी होना चाहिए, अदरवाइज विल नॉट गेट द प्रॉपर डिस्टेंस। तो टाइम कैलकुलेट हो गया, किसने कैलकुलेट किया? मशीन इटसेल्फ विल कैलकुलेट द टाइम, डिफरेंस इन टाइम देखेगा ना, एमिटर से रे कब निकली थी और रिसीवर में कब वापस आके, है ना, वापस आई, उसके टाइम मिल जाएगा। स्पीड क्या है? लाइट की स्पीड क्या है? 3 × 10⁸ डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट, जनरली लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड है, बट अगेन डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स आर सेंट, सो थोड़ा बहुत इसमें मॉड्यूलेशन में फर्क होता है, बट अगेन इट इज आल्सो डिजाइन, और वो जो इंस्ट्रूमेंट है उसको वैसे कैलिब्रेट करते हो वो स्पीड के हिसाब से। फाइन, तो स्पीड मिल गया, डिस्टेंस मिलेगा आपको फिर उसके ऊपर से स्पीड इनटू टाइम करके। यस सर। देयर इज अ कैच इन दिस। क्या, कौन सा डिस्टेंस मिलेगा आपको? डिस्टेंस बिटवीन द इंस्ट्रूमेंट एंड द ऑब्जेक्ट मिलेगा या कुछ और डिस्टेंस मिलेगा? इंस्ट्रूमेंट एंड लोकेशन सर। डिस्टेंस बिटवीन सर जो इंस्ट्रूमेंट है और जहां से वो रिफ्लेक्ट हुई लाइट वहां। यस, एनीवन एल्स? देखो आपका जहां इंस्ट्रूमेंट्स, वो जो ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट वहां तो टाइमर नहीं लगाया ना, इंस्ट्रूमेंट पे टाइमर लगाया, तो उसको जाने को भी टाइम लगेगा, आने को भी कुछ टाइम लगेगा, वो दोनों टाइम आ गया ना उसमें, नहीं समझे? यस सर, यस सर, यस सर। वो जाएगा यहाँ से, स्ट्राइक करेगा, एक टाइम वो हो गया T1, फिर आने को भी सेम टाइम लगेगा T2, दैट T1 विल बी इक्वल टू T2 ना, सेम वेव है। यस सर। तो डिस्टेंस क्या? ट्वाइस ऑफ डिस्टेंस मिलेगा हमको यहाँ पे, 2t। टू, हाँ, तो उसको डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, तो s into t, स्पीड ऑफ लाइट into टाइम इन नैनोसेकंड्स डिवाइडेड बाय 2, दैट विल गिव अस द डिस्टेंस बिटवीन द इंस्ट्रूमेंट एंड द ऑब्जेक्ट। तो ये फंडा होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट्स अपने पास है, ये इंडिविजुअली आल्सो यू कैन यूज विदाउट टोटल स्टेशन, और यू कैन यूज इट सेपरेटली आल्सो। तो ये फंडा है, जैसे मैंने आपको बताया। सो डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स है ना। अगेन आई विल नॉट गो इन टू मच डिटेल, बट जस्ट फॉर योर रेफरेंस, देखो जितना बड़ा वेवलेंथ है ना, ये वेवलेंथ है, जितना बड़ा वेवलेंथ है उतना क्या होता है, फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है उसकी। समझ रहे हो? यू नो ना दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसका प्रिंसिपल पता है ना? वेवलेंथ मींस व्हाट? ज्यादा दूर तक जाएगा वो, लेकिन उसकी इंटेंसिटी कम हो जाए, फ्रीक्वेंसी में उसका इंटेंसिटी कम हो जाएगा। अरे आई हैव वन, हाँ ये देखो, ओके आई शो यू फर्स्ट दिस। तो ये देखो, ये डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स है। देखो आप, if you may have heard in medical facility में एक्सरेज मेजर होता है ना। एक्सरेज क्या मेजर होता है एक्चुअली? एक्सरेज में wherever there is hollow it can be detected, because वो फ्लैश के थ्रू जाता है, लेकिन बोन्स को वो क्या होता है, बोन से स्ट्राइक होके बैक आता है। तो एक्सरेज हैव अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, सो दे गिव अस अ प्रोफाइल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बोन। जहां पे बोन नहीं, वो क्या होगा, वो फ्रैक्चर डिटेक्ट करेगा उसमें। बात समझ रहे हो? तो वो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से चले। वैसे गैमा रेज है, कॉस्मिक रेज है ना, जो अल्ट्रासोनिक वगैरह रेज होते हैं,
प्रेगनेंसी एंड ऑल डिटेक्ट करने के लिए, तो गैमा रेज यूज होते हैं। वैसे डिफरेंट, दीज आर हार्मफुल रेज, इसमें एक्सपोजर ज्यादा करोगे तो इवन योर टिश्यूज एंड ऑल दे डाई, तो इसमें ज्यादा एक्सपोजर नहीं, इसलिए बच्चों को एक्सरेज एंड ऑल से दूर रखा जाता है अनलेस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अनबॉर्न बेबीज दे आर जनरली, है ना, बहुत उसको केयरफुली करना पड़ता है। तो जितना इसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होती है, ठीक है, लेकिन उसका क्या बोलेंगे, उसका पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होता है, लेकिन उसकी जो ये है ना, उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज लेस। देखो अभी रेडियो कैसे सुनते हैं, रेडियो का कहां से होता है, सैटेलाइट से ये होता है ना, तो लॉन्ग वेव्स हो, तो सैटेलाइट का सिग्नल आ जाता है, इसका मतलब क्या है, इट हैज लॉन्ग वेव्स, इट हैज लॉन्ग रीच, बट उसकी इंटेंसिटी इज क्वाइट, दोज आर लो इंटेंसिटी वेव्स, हाई वेवलेंथ लो इंटेंसिटी, इतना याद रखो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वेवलेंथ ज्यादा इसका मतलब उसका इंटेंसिटी कम है, दे विल नॉट हार्म यू ना, रेडियो आप सुन रहे हो कभी, है ना, तो रेडियो में दे विल नॉट हार्म योर ब्रेन सेल्स एंड ऑल, बट ये रेज अगर यू आर एक्सपोज, मोबाइल फोन एंड ऑल से आप एक्सपोज हो, तो क्या है, ज्यादा एक्सपोजर रहेगा तो दे में हार्म योर नर्व सेल्स एंड ऑल। तो ये सब कंसेप्ट्स है फिजिक्स के, विल नॉट गो इन टू मच डिटेल, दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। वेवलेंथ पता है, वेवलेंथ होता है, नंबर ऑफ वेवलेंथ्स आर कंप्यूटेड, देन अगेन दिस एक्स्ट्रा थिंग इज देयर, तो बेस्ड ऑन दैट your distance is computed, and distance is what, nl, n into lambda, lambda is the wavelength of one wave, तो कितने lambda है plus this extra p which is a part of this lambda, because वो पूरी wave खत्म नहीं है ना, आधी wave उधर है, जो भी point, some point of wave is there, so that will give us the display principle, it is behind the scene what is going on, of course technically अब जब प्रैक्टिकल करोगे तो आपको ये सब चीज ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इंस्ट्रूमेंट खुद आपको सारी चीज करके देगा, नहीं कैसे हुआ उसके पीछे का लॉजिक अगर समझना है तो ये सारी चीज ध्यान में रखो, फाइन। तो सिमिलरली देयर आर, वो आपको लेक्चर है ना अभी, इसके बाद कौन सा लेक्चर है, लेक्चर है या छुट्टी है, नहीं लेक्चर नहीं है सर, ये लास्ट लेक्चर है, लास्ट लेक्चर है, सो आई एक्सटेंड फॉर 5 मिनट्स ना, बिकॉज अपना लेट स्टार्ट हुआ है, ठीक है। सो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स में देखो एक डिजिटल लेवल है ना, ये देखो आई एम नॉट डिस्कसिंग अवर कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट्स बिकॉज दैट विल ऑलरेडी बी कवर्ड इन सर्वेइंग, है ना, ऑल्दो माय एम, है ना, योर मेंटालिटी और योर दिस इज दैट पहले आपको वो सीखना चाहिए कन्वेंशन, बट ऐसा नहीं है, इवन इफ यू अंडरस्टैंड द कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट्स फर्स्ट, मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स फर्स्ट, यू कैन रिलेट इट विद द कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट्स एंड हाउ दे आर यूजफुल। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, modern instrument is not the solution for everything, sometimes you have to rely on conventional instruments only, fine। so digital level है, laser level है ना, डिजिटल लेवल में क्या होता है, बार, जैसे आप एग्जाम 12th स्टैंडर्ड के एग्जाम वगैरह आप देते हो, बार कोड सिस्टम वगैरह होता है, तो इसमें बार कोड रीड करता है आपको, जैसे लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट में हम कैसे उसका लीस्ट काउंट के हिसाब से हम उसकी वैल्यू रीड करते हैं, इसमें क्या होता है, बार कोडेड सिस्टम से वो रीड करता है, डायरेक्ट डिस्प्ले पे आ गया, इधर दिख रहा है, डिस्प्ले दिख रहा है सबको। Similarly, this type of laser levels are also there। ये सारा आजकल देखो इलेक्ट्रॉनिक्स के एडवेंट की वजह से बहुत सारा एडवांसमेंट हुआ है सर्वेइंग में, सो दीज ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और फ्यूचर, ये फ्यूचर है सब पर, तो डिजिटल लेवल है, एक्यूरेसी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल थियोडोलाइट है, नो नीड टू रीड द वर्नियर स्केल एंड ये स्केल, आपको डायरेक्ट इसने वर्टिकल एंगल और हॉरिजॉन्टल एंगल दे दिया, तो प्रिसाइज सर्विस के लिए यूज होंगे। So again, if you see electronic digital theodolite में 1 सेकेंड का लीस्ट काउंट होता है ना, तो digital readouts are there, display windows for horizontal, everything is displayed, you just need to, बस आपको पता होना चाहिए कौन से इंस्ट्रूमेंट, कौन से पॉइंट्स, कौन से लाइन से कौन से लाइन का मुझे एंगल निकालना है, if you know, if you are very careful about that, you are going to be error free। मैग्निफिकेशन देखो almost 26 to 30 times you can magnify, फील्ड ऑफ व्यू मतलब यू कैन, है ना, आपका जो रेंज है इसका, this field of view I'll discuss in the next, because it is a concept which you need to understand, and I'll discuss with you what it is exactly। short viewing distance है 1 मीटर का, तो you can सकते हो even further for 100 and 500 meters also you can measure। so characteristics है, fine। So there is the GPS, geospatial technology में total system GPS, GIS ये सारी चीज आ जाती है ना, बहुत एडवांसमेंट हुआ है, एंड विदाउट एक्चुअली विजिटिंग द प्लेस, इफ यू डू सम सर्वे, है ना, सैटेलाइट से, ड्रोन से कुछ एरिया का कैरेक्टरिस्टिक्स कैप्चर किया, दैट इज नोन एज रिमोट सेंसिंग,
एंड देन जीआईएस है, जीआईएस इज सब सिमिलर टू योर एटलस। एटलस देखे होंगे ना आप लोगों ने इन योर स्कूल डेज, देखे हो नहीं देखे हो एटलस? हेलो, एटलस नहीं देखे हो? बेसिकली देखो ये एक प्लेस है, उसका मैंने डिफरेंट मैप एक के ऊपर एक सुपर इम्पोज कर दिया है ना। एलिवेशन का मैप हो गया, फिर एक ट्रांसपोर्टेशन का, रोड का नेटवर्क का मैप बनाया, एड्रेसेस का मैप बनाया, बाउंड्रीज का एक मैप बनाया, वाटर बॉडीज का मैप बनाया है ना। तो ये सारा मैं अगर सॉफ्ट फॉर्म में इसको लाता हूँ, देखो बेसिकली म्युनिसिपैलिटीज के पास क्या होता है, सारे का हार्ड फॉर्म होता है विच इज वेरी कम्बरसम है ना। कोई पाइपलाइन किधर से ग्राउंड के नीचे फट गई है तो समझ में नहीं आता, कहाँ लोकेट करना मुश्किल हो जाता है। बट जीआईएस information is stored, geographical information is stored in soft format so that retrieving data is very easy. अगर मैं just query रन करूँ कि what are my pipelines है ना, अक्सर आपने देखा होगा, अभी तो फिर भी कम है लेकिन पहले ऐसा होता था 10-12 years बैक, 15 years बैक, जब कोई लाइट जाती थी, इलेक्ट्रिसिटी जाती थी कोई एरिया की, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा भी लगता था। Why? Because they were not able to locate the fault. People, because they didn't have the प्रॉपर कैन से कहाँ फॉल्ट है उसका प्रॉपर वो नहीं था है ना, मैप्स नहीं थे, जो भी वॉट एवर रीजंस दे कुड नॉट लोकेट। बट नाउ विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ऑल मेनी थिंग, इवन वॉट ये जो आपका ड्रेनेज सिस्टम एंड ऑल ये भी चोकअप हो जाता है, तो कहाँ स्टोर को इसको लोकेट करने में बहुत टाइम चले जाता है। बट विद द एडवेंट ऑफ दिस टेक्नोलॉजीज एंड ऑल हैज बिकम इजी। जीपीएस में भी अगेन सैटेलाइट्स के थ्रू लोकेट होता है एंड ऑल, सो दिस ऑल थिंग्स विल स्टडी। बेसिकली यू विल सी टोटल स्टेशन, जीपीएस एंड जीआईएस, ये 3 चीज ही आपके इस स्किल बेस्ड लैब कोर्स में। सो विल डू प्रैक्टिकल्स ऑन टोटल स्टेशन, जीपीएस पे प्रैक्टिकल्स है एंड जीआईएस पे, तो विल डू ऑल दिस प्रैक्टिकल्स। फाइन, सो आई थिंक विल स्टॉप हियर। सो व्हाट आई डू, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू जस्ट राइट योर नेम्स है ना। जो फर्स्ट ईयर वाले हैं वो रोल नंबर्स लिखो, और जो डीएसवाई वाले वो नेम्स लिखो चैट बॉक्स में, बिकॉज मीटिंग इज रिकॉर्डेड। सो जस्ट राइट योर नेम, फाइन।